Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 6.5. Last three questions are doubts of a student. So I explain these today. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC. D point है BC side पे. So that BD is equal to 1/3 of BC. जो BD side है उसमें से BD एडजस्टमेंट हो रही है, दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ फुल साइड BC. प्रूव दैट 9AD² इज इक्वल टू 7AB². अब इसमें गिवन आ जाएगा triangle ABC is an equilateral triangle and D is a point on side BC, so that ABD is equal to 1/3 of BC. To prove में आ जाएगा 9AD² is equal to 7AB². I will start from directly proof. Let this is triangle ABC, that is an equilateral triangle, means all of its sides are equal. Here a point D is there. BD is equal to 1/3 of full side BC, and we have to adjust here altitude AL perpendicular to BC. कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने इसमें? We have to construct here, draw AL perpendicular to BC. प्रूफ में है ABC is an equilateral triangle now we have to adjust here in triangle ABL and triangle ACL. दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम BL इज इक्वल टू BLC ले सकते हैं और बाय CPCT उसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन एडजस्ट किया जाएगा. Here the sides are AB is equal to AC. It is given angle ABC is equal to angle ABC की जगह पे लो ABL is equal to angle ACL, क्योंकि ट्राइंगल L तक लिए हुए हैं ना हमने, B और C तक तो नहीं लिए. It is opposite angles of equal sides. Here are opposite angles of equal sides. And third condition is here AL is equal to AL. It is common side in both the triangles. So triangle ABL is congruent to triangle ACL. It is by side angle side congruency rule. And now we have to adjust here BL is equal to LC. This is by CPCT. Now it is given to us that BD is equal to 1/3 of BC and BL and LC जो है both are equal to half of BC according to it. BL is equal to LC है तो दोनों half of BC हो गए. And DL की वैल्यू भी हमें इसमें एडजस्ट करनी पड़ेगी. Why? फर्स्ट वी हैव टू एडजस्ट हेयर ALC ट्राइंगल के अकॉर्डिंग AL की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. AL की वैल्यू फाइंड करने के बाद ADL के अकॉर्डिंग AD² एडजस्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ AB², तो उसके अकॉर्डिंग आगे एडजस्टमेंट की जाएगी. सो हमें यहाँ पे DL चाहिए. DL इज इक्वल टू BL माइनस BD, और BL की वैल्यू है आपके पास हाफ ऑफ BC माइनस BD है 1/3 ऑफ BC, दैट मीन्स 6 एलसीएम. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3BC माइनस 2BC. 3BC माइनस 2BC 1BC. तो DL की वैल्यू भी आ गई BC/6. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर इन ट्राइंगल ALC. साइड वाला राइट साइड वाला ट्राइंगल ले लो. बाय पाइथागोरस थ्योरम it will be AL² plus LC² is equal to AC². now AL को AL ही रहने दो क्योंकि इसको फाइंड करना है हमें. LC is the value of half of BC whole square is equal to, we can adjust here BC का AC is equal to BC, क्योंकि BC की फॉर्म में हमें एडजस्ट करना है या फिर AB की फॉर्म में हमें एडजस्ट करना है.
तो इस टर्म को भी हम ए सी को इक्वल टू बी सी ले लेंगे, बिकॉज बी सी फॉर्म के अकॉर्डिंग ए एल फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे रीज़न दे दो, बिकॉज एल सी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड बी सी इज़ इक्वल टू ए सी की जगह पे बी सी ले लिया। दिस इज ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू BC square. This term on the right side will be negative 1/4 of BC square. That means 4 LCM. According to LCM 4, it will be 4 BC square minus BC square. Yes, here we have to adjust here. AL square is equal to 3/4 BC square. Now, this is the value of AL square. Now we have to adjust here triangle ADL. ADL में DL की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, AL की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग AD की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। Now we have to adjust here in triangle ADL. AD square is by Pythagoras theorem. AD square is equal to DL square plus AL square. That means AD square is equal to DL is the value BC upon 6 होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर AL स्क्वायर की वैल्यू यही आई है, तो यही हम यहाँ पे शो करेंगे। इसका होल स्क्वायर नहीं करना, मतलब इस बात का ध्यान रखना है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 36 एंड दिस इज 3/4 BC स्क्वायर। 36 इज द एलसीएम। BC स्क्वायर 36/4 9 9 3 ज़ार 27 BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कोई फॉर्म में आ गया। AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, 28 BC स्क्वायर अपॉन 36, दैट इज 7 9 4 के टेबल पे कैंसिल हो गया, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 BC स्क्वायर अपॉन 9। दैट मीन्स 9 इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7। BC को ले लो इन फॉर्म ऑफ AB, बिकॉज BC इज इक्वल टू AB अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। इट इज प्रूव नाउ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16th is, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of other side, one of its altitude। मतलब कि 3 टाइम साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम अल्टीट्यूड स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC एंड AL इज द परपेंडिकुलर टू इट। अब गिवन क्या है इसमें, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल and AL is perpendicular to BC। टू प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पे, 3 टाइम AB स्क्वायर, किसी भी साइड का स्क्वायर ले लो, एक ट्राइंगल हमने लेने ना, उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ कर देंगे, इज इक्वल टू 4 टाइम AL स्क्वायर। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर प्रूफ। दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, मीन्स के हाफ ऑफ BC हो जाएगी फिर से, तो इसी के अकॉर्डिंग आगे एडजस्टमेंट की जाएगी। इन ट्राइंगल ADBL एंड ट्राइंगल ALC, AB इज इक्वल टू AC, गिवन एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल ACL, ऑपोजिट एंगल्स हो गए। इट इज opposite angles of equal sides, मीन्स के इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड का ये। अब AD इज इक्वल टू AD, बोथ आर कॉमन, सो ट्राइंगल ABL is congruent to triangle ALC by side angle side congruency rule। सो बाय CPCT क्या हो जाएगा, BL इज इक्वल टू LC। इट इज बाय CPCT। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर
इन ट्राइंगल ABL, देखो ये जो ट्राइंगल है लेफ्ट साइड का उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम it will be AB square is equal to AL square plus LB square, that is AB square is equal to AL square plus half of BC square, half of BC हो जाएगा ना LB। यहाँ पे रीज़न दे दो बिकॉज LB is equal to LC is equal to half of BC, that means AB square is equal to AL square plus 1/4 of BC square, and according to it, it will be AB square minus 1/4 of BC की जगह पे ले सकते हो AB बिकॉज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आगे रेफरेंस दे देंगे, रीज़न दे देंगे इज इक्वल टू AL स्क्वायर बिकॉज AB इज इक्वल टू BC। BC को हमने AB एडजस्ट कर लिया ना यहाँ पे, तो इट विल बी 3AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AL स्क्वायर, दैट इज 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AL स्क्वायर। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AL स्क्वायर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 17। टिक करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई भी करना है मतलब सॉल्व भी करना है, इसको करेक्ट आंसर को टिक भी करना है। ये ऑप्शन में है, वैसे आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है इफ़ AB इज इक्वल टू दिस वन, BC इज इक्वल टू दिस वन एंड AC इज इक्वल टू दिस वन, then value of angle B is this, या value of angle A and B is this। तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। here we have to adjust a triangle ABC, AB is equal to है 6 root of 3, BC is equal to है 6 centimeters एंड AC इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे देखो करके एडजस्टमेंट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 6 रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 36 इंटू 3 हो जाएगा 108 प्लस 36, मतलब इसका स्क्वायर किया तो 108, 6 का स्क्वायर आया तो 136 ओनली 36, तो टोटल आ गया 144 सॉरी। AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, तो AB की वैल्यू होएगी रूट ऑफ 144, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 12, ये अपने पास 12 ही है, मीन्स के इट फॉर्म्स अ राइट ट्राइंगल बाय अ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये राइट ट्राइंगल बनता है, जो साइड हम दूसरी साइड की लेते हैं सिंगल साइड, वो मानी जाती है हाइपोटेन्यूज। सो इट फॉर्म्स a right triangle with Pythagoras theorem, so it is right angled at, अगर ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है तो राइट एंगल किस पॉइंट पे होएगा, B पे, राइट एंगल्ड एट B, दैट मीन्स एंगल B तो हो गया 90 डिग्री का। अब we have to adjust here, let D is a point on midpoint of AC, let D is the, अब इसके अकॉर्डिंग एक एंगल तो फाइंड हो गया, तो बाकी एंगल तो नहीं हमें पता, उसके अकॉर्डिंग बाकी एंगल्स भी हम एडजस्ट कर लेंगे। B की वैल्यू वैसे आपकी 90 डिग्री आ चुकी है, थर्ड पार्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर बाकी एंगल भी इनमें मान लो फाइंड करने हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे, लेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट मान लिया, and we know that midpoint of hypotenuse, this is H, hypotenuse is equidistant from all vertices of triangle, सभी vertices से equidistant होएगा। अगर ये 12 है तो इसका मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग DC कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर।
अगर ये 6 है तो ये भी आपके पास इक्वल डिस्टेंस कितना होएगा 6 सेंटीमीटर्स, और ये थर्ड साइड तो ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर हमें गिवन ही है, तो इसके अकॉर्डिंग इट फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, सी एंगल भी फाइंड हो गया 60 डिग्री का, और ए एंगल हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर लेंगे। सो DC is equal to half of BC, that is equal to 6 centimeter, and BD is also equal to 6 centimeter, and BC is equal to 6 centimeter given to us. So DC equal to BD is equal to DC. It is an equilateral triangle. So angle C कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का। Now angle A plus B plus C is equal to 180 degree. It is by angle sum property. A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, B की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है फुल, ये ले लो इन ट्रायंगल ABC फुल ट्रायंगल में। इट इज़ की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो सो ट्रायंगल BDC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम लिखना बेटर है। और एंगल A फाइंड करना है, B 90 है और C हमने फाइंड किया था 60। दैट मीन्स एंगल A कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, दैट इज़ 30 डिग्री। A भी फाइंड हो गया, C भी फाइंड कर चुके हैं, और ऊपर हमने B भी फाइंड किया था। ऑल द एंगल्स वी प्रूव। वैसे आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है, पार्ट 3 इज द आंसर। बाई चांस अगर इसमें आपको प्रूव करना हो कि बाकी के दो एंगल्स भी फाइंड करो C एंड A, then you have to solve like this question. Now 6th unit is totally completed, and in my next video I will start 5th unit. Till then, thank you.